اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور سورہ بقرہ کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات آپ تک براہ راست پہنچتے رہیں، اور لائک اور شیئر بھی کر لیجئے تاکہ مزید لوگوں تک اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچے۔ ناظرین، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 1 سے 7 تک کی تشریحات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 کی تفصیلات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَيُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، لیکن وہ اوروں کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، جس کا انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے جو گزشتہ آیات گزری ہیں ان میں 2 گروہوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ہدایت قبول کرتے ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں اور متقین کہلاتے ہیں۔ اور دوسرے گروہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے ہدایت الہی کا انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ کافر کہلاتے ہیں۔ اب ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو ظاہر میں تو ہدایت تسلیم کرتے ہیں مگر ان کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ اس سے اگلی 13 آیات میں منافقین کی سازشوں اور چال بازیوں کا حال بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، نفقان اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے داخل ہونے اور نکلنے کے دونوں سرے کھلے ہوں۔ جس سرنگ میں نکلنے کا راستہ ہو اسے سرب کہتے ہیں۔ وَالنَّافِقَاءُ جنگلی چوہے کے بل کے متعدد سوراخوں میں سے ایک سوراخ کو کہتے ہیں، جس پر وہ مٹی کی باریک سی تہ بچھا کر اسے بند کر دیتا ہے، اور اسے اس وقت سر مار کر کھولتا ہے جب اس کا کوئی دشمن اسے بل کے اندر سے پکڑنے کی کوشش کرے۔ اس کی جمع نفقتن آتی ہے۔ اس لحاظ سے منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی نظام یا سوسائٹی میں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے ایک گروہ کو قرآن مجید نے منافقین کہا ہے۔ اوائل اسلام میں یہ ایک خطرناک گروہ تھا۔ یہ شرک کو پوشیدہ رکھتے اور ایمان کو ظاہر کرتے۔ جنگلی چوہے کی طرح یہ خداع یعنی دھوکے باز کہلاتے۔ شریعت میں منافق کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے کہ جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو چھپاتا ہے۔ ناظرین، منافقین کی کئی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم کا منافق وہ ہے جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے مگر باطن میں کفر بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس پر مطمئن رہتا ہے۔ دوسری قسم کا منافق وہ ہے جو ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے متذبذب ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء
आयत नंबर 142 और 143 में ऐसे ही मुनाफिकीन के बारे में बताया गया है। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊनन्नास व ला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा हाउलाइ व ला इलाहा हाउलाइ व मन युज़लिलिल्लाहु फ़लन तजिद लहू सबीला। बेशक मुनाफिक अपने गुमान में धोखा दे रहे हैं अल्लाह को, और अल्लाह ताला सज़ा देने वाला है उन्हें इस धोखाबाजी की। और वो जब खड़े होते हैं नमाज की तरफ तो खड़े होते हैं काहिल बनकर, इबादत की नीयत से नहीं, लोगों को दिखाने के लिए, और नहीं जिक्र करते अल्लाह ताला का मगर थोड़ी देर। डामाडोल हो रहे हैं कुफ्र और ईमान के दरमियान, ना इधर के और ना उधर के। जिसको गुमराह कर दे अल्लाह ताला तो हरगिज़ ना पाएगा तो उसके लिए हदायत का रास्ता। नाज़रीन, दोनों किस्म के मुनाफिकीन का निफाक शदीद होता है, इनका एतकाद फासिद होता है। और इस मकाम पर जिन मुनाफिकीन का ज़िक्र है वो यही एतकादी मुनाफिक हैं जिनके अकीदे में कुफर भरा होता है। तीसरी किस्म का मुनाफिक वो है जो अखलाकी और अमली मुनाफिक होता है। ऐसा शख्स अपने गुनाहों की वजह से आखिरत के नुकसान को दुनिया के नुकसान पर तरजीह देता है, और दुनिया के नफ़ा को आखिरत के नफ़ा पर तरजीह देता है। नाज़रीन, एतकादी मुनाफिक है कौन? आइए ये भी जान लेते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला का इरशाद है, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। यानी अल्लाह ताला और यौम आखिरत के बारे में उनका वो अकीदा नहीं जो अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ज़ाहिरन वो उसे कबूल करते हैं लेकिन बातिनन वो ऐसा नहीं करते। ऐसे लोग धोखेबाज हैं। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह ताला और ईमानदारों को धोखा देते हैं। वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, मगर हकीकत ये है कि ये अपनी जानों को धोखा दे रहे हैं। यानी वो समझते हैं कि हकीकत को छुपाकर वो अल्लाह ताला और ईमान वालों को धोखा में रख रहे हैं और वो इसमें बहुत कामयाब हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो खुदा ताला या ईमान वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अपना ही इंजाम ख़राब कर रहे हैं और सोचते नहीं हैं। वमा यशऊरून, उनको इतना भी शऊर नहीं है कि खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नाज़रीन, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। नफाक की बीमारी जिस्मानी बीमारी नहीं बल्कि दीन की बीमारी है। जिस तरह अजसाम की बीमारियां होती हैं इसी तरह दीन और अकीदे की बीमारियां होती हैं। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स एतदाल की हालत से निकल जाता है वो बीमारी में मुब्तला हो जाता है जिसके मुख्तलिफ अनासर और अज्जा जब तक एतदाल में रहें इंसान की सेहत दुरुस्त रहती है, और जब ये एतदाल ख़राब हो जाए तो जिस्म बीमार पड़ जाता है। अकीदे का मामला भी ऐसा ही है। जब आदमी एतदाल का रास्ता छोड़ देता है तो फिर बदअकीदगी, हसद, कीना और गुनाहों के साथ मोहब्बत का रास्ता खुल जाता है, और यही वो चीज़ है जो इंसानों को फजीलत की बातों से रोकती है और अब्दी और हकीकी ज़वाल का बायस बनती है। इसलिए अरबी में मरदुन का लफ्ज़ निफाक के लिए भी बोला जाता है। कीना और हसद भी निफाक की ही कहलाता है। चुनांचे झूठ, शिर्क, निफाक, शक, तरद्दुद और इल्हाद वगैरह सबसे बड़े गुनाह हैं जिनसे रूहानी बीमारियां पैदा होती हैं। फ़ज़ादहुमुल्लाह मरदा, अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया है। ये तो मुसल्लम हकीकत है कि जब किसी को जिस्मानी बीमारी लग जाती है और उसका
वक्त पर इलाज ना किया जाए तो बीमारी बढ़ जाती है और एक दिन नासूर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस तरह मुनाफिकीन का हाल है, वो अपने हसद और कीना के वजह से एक ऐसी रूहानी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं कि इलाज ना होने के बायस उनकी बीमारी बढ़ती ही चली जाती है। कुरान मजीद ने उनका इलाज करना चाहा लेकिन उन्हें ये इलाज कबूल ना हुआ। अब अल्लाह ताला ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। यही वजह है कि उनकी बीमारी लाइलाज होकर रह गई है और एक रूहानी नासूर की शक्ल इख्तियार कर गई है। और यकीनन जब कोई भी बीमारी इस हद तक पहुंच जाए तो फिर बीमार को उसके नताइज भुगतना पड़ते हैं। जिस्मानी नासूर का नतीजा मौत है और रूहानी नासूर का नतीजा दर्दनाक अज़ाब है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और ये सज़ा उनके लिए उनको उस जुर्म की पादाश में मिलेगी बिमा कानू यकज़िबून, कि वो झूठ बोला करते थे, ज़बान से हक़ का इकरार करते थे, अहले ईमान की रफ़ाकत का दम भरते थे, मगर दिल में कुफ्र के हम रकाब होते थे। गोया वो ज़बान से झूठ बोलते थे, चुनांचे फरमाया उनके झूठ की वजह से उन्हें दर्दनाक अज़ाब का मज़ा चखना होगा। यह उनके निफाक के हसद की या कुफ्र की सज़ा है। नाज़रीन, ये इस्तिलाहात कुरान मजीद में अक्सर इस्तेमाल की गई हैं। अज़ाब अज़ीम का लफ्ज़ी मानी है बहुत बड़ा अज़ाब। ये अज़ाब कुफ़ार के लिए है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानने से सरीहन इनकार करते हैं। वो ज़ाहिरी और बातनी दोनों लिहाज से दीन के मुनकर होते हैं, इसलिए अज़ाब उन्हें दरपेश होगा, वो बहुत बड़ा होगा। अज़ाब कोई भी हो, अज़ाब ही होता है जिसमें मुब्तला होकर कोई भी सुकून और इत्मीनान से नहीं रह सकता। यूँ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिन अज़ाबों का ज़िक्र किया है किसी से पनाह मुमकिन नहीं है, लेकिन दर्दनाक अज़ाब वो है जो उस शख्स को जो उसमें मुब्तला होगा हर पल सख्त अजियत और दर्द का एहसास दिलाएगा। इस लिहाज से इसे दर्दनाक अज़ाब कहा गया है। और यह अज़ाब मुनाफ़िकों के हिस्सा में आएगा, क्योंकि मुनाफिकीन झूठ और मक्कारी से काम लेते हैं और दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं और हक़ को बातिल की चादर में छुपाकर वो दोहरे गुनाह के मुर्तकब होते हैं। नाज़रीन, अज़ाब अलीम की तफसीलात पढ़ने के लिए मेरी किताब चश्मे तसव्वुर आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आज की नशिस्त में इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।